ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کچھ دیر بعد اس کے پہننے کے لیے ساری جیولری اور وہ لہنگا آ گیا تھا، جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ 2 گھنٹوں میں کوئی اتنا شاندار اور خوبصورت لہنگا کیسے منگوا سکتا ہے، اور ساتھ ہی اتنی مہنگی ہیرے کی جیولری بھی۔ یوں کچھ ہی دیر بعد اس کا میک اپ بھی مکمل ہو چکا تھا، جو کہ ملک کی سب سے اچھی آرٹسٹ نے کیا تھا۔ وہ میر حیدر کے نام کی دلہن بن چکی تھی۔ نہ جانے وہ یہ سب سوچ کر خوش ہوتی یا روتی، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ اس کا خواب تھا کہ اس کی شادی ایسی شاندار ہو کہ کسی نے دیکھی نہ ہو۔ وہ خواب دیکھتی تھی کہ جب اس کی شادی ہو تو وہ اتنا حسین لہنگا پہنے اور ایسی خوبصورت جیولری زیب تن کرے جو کسی نے دیکھی نہ ہو۔ اس کے بال خوبصورتی سے جوڑے کی شکل میں قید تھے، اور ہاتھ میں وہ کانچ کی چوڑیاں دور سے چمک رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب اس کی پسند کے مطابق ہو، کیونکہ یہ بالکل اس کی چوائس میں فٹ آ رہی تھی۔ جب وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی تو بلا اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ اس وجہ سے نہیں رو رہی تھی کہ اس کی شادی ہو رہی تھی، بلکہ اس لیے رو رہی تھی کہ اس سب میں اس کی رضامندی بالکل بھی شامل نہیں تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ شادی کی تمام ارینجمنٹس اس کی چوائس کے مطابق تھی، لیکن ایک چیز تھی جو اس کے خوابوں اور اس کی چوائس میں کبھی بھی فٹ نہیں ہو سکتی تھی، اور وہ تھی میر حیدر سے شادی۔ اگر آج اس کا دولہا کوئی اور ہوتا تو وہ خوشی سے پاگل ہو رہی ہوتی۔ یہ زبردستی کی شادی تھی جو صرف وہ اپنے بابا کی خاطر کر رہی تھی۔ اگر خدا نے اسے آخری موقع دیا ہوتا تو وہ اس زندگی سے آزاد ہو جاتی یا اپنے ہونے والے شوہر کو غائب کر دیتی۔ سوچتے سوچتے وہ وقت آ گیا تھا جب اپنے بابا کی خوشی کی خاطر اس نے اپنے چہرے پر مسکان سجانی تھی اور سب کو دکھانا تھا کہ وہ میر حیدر کی بیوی ہے۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سورج کی روشنی سیدھی اس کے چہرے پر آ پڑی۔ سامنے تقریباً 300 کے قریب لوگ موجود تھے جو اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ آرام سے چلتی ہوئی میر حیدر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بہت زیادہ نروس محسوس کر رہی تھی۔ وہ واش روم جانا چاہتی تھی تاکہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے اور زاروں قطار رو سکے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن پھر فوراً ہی اس نے اپنے دل کو ڈانٹا۔ نہیں، اگر میں یہاں سے بھاگ گئی تو میرے بابا کا کیا ہوگا؟ میں ان کی آخری امید ہوں۔ وہ صرف اپنے باپ کی خاطر ہی یہ سب کر رہی تھی۔ اچانک اس کے کانوں میں ایک آواز آئی، میم، آپ کو کچھ چاہیے؟ یہ آواز اس کے قریب کھڑی کیئر ٹیکر کی تھی، جسے میر حیدر نے اس کے لیے ہائر کیا تھا۔ نہیں نہیں، اس نے ٹوٹی پھوٹی آواز میں کہا، جو کافی مشکل سے نکل رہی تھی، پر اسے چلنے میں دشواری ہونے لگی تو اس نے کیئر ٹیکر میں سے 2 کو مدد کے لیے پکارا۔ وہ دونوں فوراً اس کے پاس آئیں اور کہا، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتی ہیں؟ پر ارمش خان نے ان سے کہا کہ میرا ہاتھ تھام لے تاکہ میں آرام سے چلوں۔ تو وہ دونوں فوراً میر حیدر کو دیکھ کر یک دم کرنٹ کھا کر پیچھے ہو گئی تھیں کہ معاف کریں، پر ہم آپ کی لائم لائٹ خراب نہیں کر سکتی، لیکن اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ ہم سے کہہ سکتی ہیں۔ ان کی بات سن کر ارمش خان کا دل بھر آیا۔ اسی دوران میر حیدر ارمش خان کے پاس آیا۔ اس نے زبردستی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر سب کو یہ دکھایا کہ وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ اس کے تمام بزنس پارٹنرز اس وقت خوشی کے نعرے لگا رہے تھے، اور یوں میر حیدر کے نام کے نعرے اس ہال میں گونج رہے تھے۔ ارمش خان نے گہرا سانس خارج کیا تھا، کیونکہ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا کہ میر حیدر اس وقت ڈھونگ رچا رہا ہے۔ جب اگلے ہی پل میر حیدر نے مصنوعی مسکراہٹ سجا کر ارمش کا وہ ہاتھ پوری قوت سے پریس کیا تھا، ارمش خان سسک کر رہ گئی تھی۔ چلو مسز ٹو بی، اب سب سے ملتے ہیں۔ وہ اس کو لے کر سب کے پاس جا رہا تھا۔ ارمش نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ اس کے لہنگے میں
जो डिज़ाइन था, मीर हैदर की शेरवानी में भी वही डिज़ाइन प्रिंट हुआ था। जैसे ही उसने ये सब सोचा, अचानक मीर हैदर ने उसे पुकारा, अरमिश, निकाह वहाँ होगा, हमें वहाँ जाना है। उसने नरमी से कहा और यूं वो एक दूसरे के सामने बैठ गए। उनके दरमियान एक पर्दा लगा हुआ था। कुछ देर बाद निकाह मुकम्मल हो गया और जैसे ही निकाह ख़त्म हुआ, अरमिश खान के चेहरे से लगातार आंसू बहने लगे। हबीब अली खान अपनी बेटी अरमिश खान के पास आए। उसका हाथ थामकर रुखसती में उन्होंने अपनी बेटी की मदद की। नगीना बेगम ने भी यही जाहिर किया कि इस रुखसती की वजह से वो बहुत उदास हैं, लेकिन अरमिश खान को उनकी सच्चाई मालूम थी। बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, अगर हो सके तो। हबीब अली खान ने अपनी बेटी का माथा चूमते हुए आंखों में नमी के साथ कहा। अरमिश खान अपने बाप को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन अगले ही पल उसे अपने कंधों पर किसी के हाथ की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब उसने देखा तो वो मीर हैदर था, जो उसे उसके बाप से अलग कर रहा था। सबके सामने मीर हैदर ने अरमिश की आंखों से आंसू साफ किए। हर कोई अरमिश खान की किस्मत पर रश्क कर रहा था कि देखो कितना मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है, पर असल सच्चाई कौन जानता था। कुछ देर बाद मीर हैदर ने अपने ससुर हबीब अली खान से इजाज़त ली। हबीब अली खान ने उससे कहा, मैंने अपनी बेटी को बहुत तकलीफ़ दी है और इस शादी में उसकी रजामंदी शामिल नहीं थी, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप भी मेरी बेटी को वही तकलीफ़ दें। अगर आप इसे कुछ देना चाहते हैं तो इसके ज़ख्मों पर मरहम लगाना, ना कि इसे मज़ीद ज़ख्म देना। मेरी बेटी का ख्याल रखना, मैं आपको अपनी कुल दुनिया सौंप रहा हूँ। ये सब सुनकर अरमिश खान का दिल टूट गया था। मीर हैदर का रद्द-ए-अमल कुछ गैर वाज़ेह था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने ससुर की बात सुनकर मुकम्मल तौर पर साकित था। रास्ते में उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। वो लैंड क्रूज़र थी जिसकी फ्रंट सीट पर ड्राइवर के साथ मीर हैदर बैठा था, जबकि पीछे अरमिश खान बैठी अब भी सोग में डूबी हुई थी। अरमिश खान को वो ड्राइवर बहुत मेहरबान लगा, जो कि उसके वालिद की उम्र का था। जब मीर हैदर ने अपना गला खंगारा और फिर अरमिश खान से मुखातिब हुआ, तुम जानती हो मैं किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे मालूम है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ और मुझे पता है कि तुम्हें वक्त चाहिए होगा, लेकिन प्लीज़ क्या तुम मेरी आइडियल वाइफ बन सकोगी, मेरे बिजनेस पार्टनर्स और मेरी दुनिया के सामने, क्योंकि अब हमारी शादी हो चुकी है। वैसे भी अब तुम कुछ कर नहीं सकती। जो हुआ उसे कबूल कर लो तो बेहतर है। उसने अपनी बात मुकम्मल की। अरमिश को उसकी ये बातें नाकाबिले कबूल लग रही थी। वो चाहकर भी उसे कबूल नहीं कर सकती थी। वो जानती थी कि मीर हैदर सिर्फ अपने बिजनेस और अपनी इमेज की खातिर उससे ऐसी बातें कर रहा था। वो सिर्फ एक बड़े बिजनेस का मालिक ही था, लेकिन ना जाने उसने खुद को क्या समझा हुआ था। अरमिश की ज़िंदगी उसी की वजह से ख़राब हुई थी, जबकि उसकी सौतेली बहन ने इसकी ज़िंदगी में तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो यही सोचकर फ़ौरन बोली, तो आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? अरमिश ने मज़ीद कहा, मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। उसने मीर हैदर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। अरमिश का दिल कर रहा था कि वो इस चलती गाड़ी से छलांग लगा ले और दुनिया को बता दे कि सामने बैठे शख्स ने उसे किस कदर टूट कर रुलाया है और ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके उसे इस शादी पर आमादा किया है। मीर हैदर ने उसकी बात सुनी, पर चेहरे पर इत्मीनान सजाए मुस्कुराया था। अच्छा बताओ, मुझे क्या कर लोगी? मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरी बीवी मेरे साथ क्या करेगी। उसने अगले ही लम्हे आंख दबाकर शरारत से कहा। उसकी बातों का मतलब जानकर अरमिश खान शर्म से पसीने पसीने हो गई थी। मीर हैदर ने ड्राइवर का भी लिहाज ना रखा। वो बड़बड़ाई, बेशर्म कहीं के। फिर फौरन बोली, मैं अभी भी भाग सकती हूँ। उसने बड़े फ़ख्र से कहा,
लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि वो कुछ भी नहीं कर सकती। अगर भागना होता तो निकाह से पहले ही भाग जाती। उसके बाद मीर हैदर संजीदा हो गया। देखो अरमिश, तुम जो करना चाहो करो, मुझे तंग करो, मुझे थप्पड़ मारो, जो चाहो करो, तुम मुझे गाली भी दे सकती हो, लेकिन प्लीज आज के बाद कभी भी मुझे छोड़ने की बात मत करना। उसकी बातें सुनकर अरमिश की आंखों में आंसू भर आए। उसे यकीन था कि ये बातें मीर हैदर अपने दिल से नहीं कह रहा। अरमिश को ऐसा लगा जैसे उसने गलती से यह सब कह दिया हो, क्योंकि एक ही लम्हे में उसका दिल नरम कैसे पड़ सकता था। उसे समझ नहीं आया। उसे तो यही लगा कि जो थप्पड़ कुछ देर पहले उसने हैदर की गाल पर मारा था, उस थप्पड़ का बदला वो इससे सूद समेत लेगा। लेकिन निकाह के फौरन बाद सब कुछ बदल चुका था। वो जानना चाहती थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला था। कुछ देर बाद वो शानदार हवेली में पहुंच गए जो मीर हैदर का घर यानी कि मीर मेंशन था। नगीना बेगम का घर भी इसी तरह आलीशान था, लेकिन अरमिश खान ने अपनी सारी जिंदगी अपने खानदानी गांव में गुजारी थी, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो अपनी सौतेली माँ के घर में जाए। पर उसके वालिद हबीब अली खान की मजबूरी थी, इसीलिए वो इस घर में रहते थे। कभी कभार अरमिश अपने वालिद से मिलने जाती थी, लेकिन अब जब वो इस शानदार मीर मेंशन को देख रही थी तो उसकी आंखें हैरत से फटी रह गई थी। मीर हैदर का घर वाकई किसी भी हवाले से कम नहीं था। अचानक उसके जहन में ख्याल आया और उसने बगैर कुछ सोचे समझे मीर हैदर से पूछा, जब आपका इतना बड़ा घर है तो आपने होटल क्यों बुक करवाया? मीर हैदर को अरमिश की बात सुनकर कुछ समझ नहीं आया और वो उसे हैरत से देखने लगा। अरमिश खान ने फौरन वजाहत दी, मेरा मतलब है कि आपका घर बहुत खूबसूरत है और आपको अपनी शादी यहाँ करनी चाहिए थी। उसने सरगोशी की। मीर हैदर ने फौरन जवाब दिया, ये घर मेरा नहीं बल्कि हमारा है, ये आज से तुम्हारा भी घर है। उसकी बात सुनकर अरमिश के दिल में एक अजीब सा तासुर जागा। उसे लगा कि मीर हैदर उसके सामने अच्छा बनकर रह रहा है, या फिर सच में वो एक अच्छा इंसान था। वो समझ ना सकी, लेकिन वो अपनी सोच को फौरन झटक चुकी थी। वो दोनों अब घर के अंदर दाखिल हो रहे थे। उनकी शादी एक होटल में हुई थी, इसी वजह से बहुत कम लोग उनकी शादी में शरीक हुए थे, लेकिन अब सब लोग मीर मेंशन में उनके इस्तकबाल के लिए इंतज़ार कर रहे थे। जब वो दाखिल होने वाले थे तो अचानक ही एक आवाज़ ने उन्हें रोक दिया। आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मीर हैदर की माँ की थी, जो खुशी से फूले नहीं समाई। जब अरमिश ने अपनी सास को देखा तो फौरन से उनके पास चली गई और उनके गले लग गई। अरमिश काफ़ी हैरान हो गई, क्योंकि मीर हैदर अपनी माँ के गले नहीं लगा था। मीर हैदर की माँ कितनी खुश थी कि उनके बेटे की शादी हो गई है, लेकिन मीर हैदर को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। कुछ देर बाद मीर हैदर की माँ रज़िया बेगम उन दोनों के पास आ गई। वो बिल्कुल अरमिश खान के साथ बैठ गई और कहा, मुझे हैदर ने सब कुछ फ़ोन पर बताया था। मुझे पता है कि तुम इतनी जल्दी ये सब कुछ कबूल नहीं करोगी, क्योंकि ये सब कुछ बहुत कम वक्त में हुआ है, लेकिन प्लीज़ तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका दो और एक दूसरे के दोस्त बनकर रहो। रज़िया बेगम की आवाज़ में काफ़ी मिठास थी। तभी अरमिश सब कुछ भूल गई थी। वो एक माँ को देख रही थी, जिसकी आंखों में अपने बेटे के लिए काफ़ी मान था, लेकिन अरमिश को यकीन था कि उसकी मीर हैदर से कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। फिर रज़िया बेगम ने मीर हैदर को भी समझाया, देखो हैदर, ये सिर्फ अरमिश की जिम्मेदारी नहीं बल्कि तुम्हारी भी है। मीर हैदर ने अपनी माँ की बात पर सर हिला दिया। चलो, तुम दोनों थक गए होगे। हैदर, अरमिश को अपना रूम दिखाओ। उसके फौरन बाद रज़िया बेगम अपने रूम में चली गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें
اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔